So welcome student, our second video of unit number 2. So in this video we will learn about 3D printed bricks, translucent wood, laminated timber and 3D tiles. Vision of the program is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department is effective implementation of teaching learning process to benefit students, imparting the modern technical skill as per the requirement of industry to improve employability. Then, third mission is to develop social and environmental responsible civil engineers. So, what learning outcome you will be achieving during this session is: list the advanced construction material for given construction project, identify the properties of given advanced material, enumerate the applications of given form of material in civil engineering, identify the situation to use the given material, justify the use of given material for given site condition. Course outcome mapped is: suggest the advanced material as per site conditions. What are the POs mapped with this unit is PO1, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7, PSO1 and PSO2. So 3D printing, as the name suggests that it is some kind of material which is in the form of 3D. आप इमेजेस में देख रहे हो आजकल ये न्यू मटेरियल निकला है जो कि डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि 3D व्यू उसमें हमको दिखता है। आजकल घरों में अगर आप देखेंगे तो फ्रंट फेस पे वॉल पे आप लोग जो टाइल्स लगा रहे हो वो 3D प्रिंटिंग टाइल्स रह रही है। सो 3D प्रिंटिंग इनोवेटिव है, न्यू डिज़ाइन है और एंड मटेरियल पॉसिबिलिटी इज़ पॉसिबल फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ ब्रिक्स. देन the overall form and the individual bricks may be designed using some parametric design software, that is Grasshopper. Grasshopper एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे ये डिज़ाइन की जा रही है. Pixel Stone is also another facility as a printer specifically designed to print brick facets. The software minimizes the time spent on redesigning and modifying the bricks by providing quick visualization. देखो सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि हम एक क्विक विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं और ये टाइम बचाता है और हमको अगर कुछ चेंज होना है तो तुरंत सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग चेंज कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ब्रिक्स कैन बी एम्बेडेड इन द मॉडल सच एज द मटेरियल कॉस्ट, प्रिंटिंग टाइम एंड पोजिशन विद इन द फुल स्केल असेंबली. ये हम उस टाइल्स के पीछे अगर एक साइड में उसका डिस्क्रिप्शन प्रिंट कर सकते हैं. सो तो दूसरा हमारा मटेरियल है ट्रांसलूसेंट वुड. क्या है? ट्रांसलूसेंट वुड. रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल विद बायो बेस्ड मटेरियल इज एन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी. Wood from trees is a key resource in many parts of the world due to its abundance. Wood से कंस्ट्रक्शन करना ये बहुत से वर्ल्ड में यानी बहुत से पार्ट ऑफ वर्ल्ड में कॉमन चीज़ हो चुकी है. ट्रांसलूसेंट वुड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीफंक्शनल वर्ड कंपोजिट्स with the addition of optical transmittance to basic wood properties. Transparent wood facility wood autonomy study and it can be used in light transmitting small building, electronic devices and its photonic devices such as photovoltaic cell and light resources. ट्रांसलूसेंट वुड क्या है? हम लोग वुड का यूज़ करते हैं जिसमें लाइट आर पार होती है. ट्रांसपेरेंट वुड उसको हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट वुड. नेचुरल वुड इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट. आप अगर झाड़ को देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट है क्या? हो नहीं, बट उस पर एक प्रॉपर्टी रहती है कि वो लाइट स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट है. तो टू मेक वुड ट्रांसपेरेंट बोथ एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग नीड्स टू बी एलिमिनेटेड. वुड में एक ऐसा प्रॉपर्टी रहती है कि वो एब्जॉर्ब भी करता और स्कैटर भी करता. तो हमको ट्रांसलूसेंट वुड अगर बनाना है तो इसको हमको क्या करना पड़ता है? एलिमिनेट करना पड़ता है. अब क्या है ट्रांसलूसेंट वुड? आप इमेजेस में देख रहे हैं ये
ये ट्रांसपेरेंट, लाइट आर पार हो रही है वो वुड का मटेरियल, पर उसको कैसे बनाया, उसकी प्रॉपर्टी कैसी हो चुकी है कि लाइट आर पार हो रही है, डेकोरेटिव दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट वुड। ओके, wood is brownish due to presence of light absorbing components such as lignin, chlorophyll and tannins. Among these, lignin is responsible for around 80 to 95% of light absorption. This light absorption can be drastically reduced by chemical treatment of the wood, either removing all of the lightning or deactivating the chromophores within the lightning. ट्रांसलूसेंट वुड, अब देखो ये एक और इमेज दिख रही है, वो वुड के हिसाब से उन्होंने क्या करे, वॉल बनाए ट्रांसलूसेंट वुड की, है वो वुड का मटेरियल, पर कैसा दिख रहा है, डेकोरेटिव आर पार ला जा रही है। तो ट्रांसलूसेंट वुड एग्जिबिट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई ऑप्टिकल आउटस्टैंडिंग टफनेस, लो थर्मल कंडक्टिविटी, लो डेंसिटी, एनेस्ट्रोपिक ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल परफॉर्मेंस। तो ट्रांसलूसेंट वुड एक आजकल बहुत ज़्यादा एक स्कोपिक चीज़ चल रही है। Laminated timber. Cross-laminated timber is a new generation of engineered wood product developed initially in Europe. ये चीज़ कहाँ बनी पहले, यूरोप में। CLT panel consists of several layers of lumber board stacked crosswise, typically at 90 degree, and glued together on their wide faces as well. Wide faces as well. ग्लूलम, ग्लूलम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लैमिनेटेड टिम्बर में। ग्लूलम ऑल्सो नोन एज ग्लूड लैमिनेटेड टिम्बर, लैमिनेटेड वुड, ग्लूलम बीम और क्लासिक ग्लूलम इज अ कंपोजिट मटेरियल with more uniform distribution and higher values of mechanical characteristics than wood. Glulam is one of the lightest construction material. ये देखो, ये इमेज आपको दिख रही है, ये है तुम्हारी जो मटेरियल के बारे में हम बात कर रहे हैं, टिम्बर वुड। देखो कैसे दिख रही है, एकदम लाइट इन वेट है, 90 डिग्री पर फेस उसका पूरा एंगल करा हुआ है। देन एज रिगार्ड्स कंस्ट्रक्शन, वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ वुड कंस्ट्रक्शन इज देयर हाई लोडिंग कैपेसिटी इन रिलेशन टू देयर ओन वेट। जितना उनका खुद का वेट रहता पर वो उससे ज़्यादा वो लोग लोड झेल सकते हैं। 20% ऑफ द वेट ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट, रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट का 20% वेट वो अपन आप झेल सकते हैं। ग्लूलम हैज सेवरल एडवांटेजेस ओवर सॉलिड वुड, बेटर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ग्लूलम क्या है, बेटर स्ट्रेंथ रहता है, रिजिडिटी रहती है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी है, वेरियस क्रॉस सेक्शनल पॉसिबिलिटी है एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ शेपिंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम। देन द नेक्स्ट इज 3D tiles. The 3D tiles can create visionary design and technological production expertise. They are produced with high-tech quartz-based material developed initially for timeless artistic sculpture and product are painted technology. ये देखो, ये अपने को दिख रही है 3D टाइल, 3D एक व्यू। ये देखो, ये घर बना हुआ है और सामने में क्या है, 3D टाइल उसके लगा हुआ है। सो प्रॉपर्टीज़ क्या है उसकी, दिस टाइल्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़: एब्रेशन रेजिस्टेंस, स्क्रैच रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, स्टेन रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, एंटीबैक्टीरियल, डायमेंशनल एक्यूरेसी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्पेलिंग, रिपेयरेबिलिटी, हाई प्रिसिशन मोल्डिंग। तो ये सब क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़ है। सो असाइनमेंट नंबर 2 क्या रहेगा आपके पर के डिफाइन ग्लूलम, एक्सप्लेन ट्रांसकुलेंट वुड और स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ 3D टाइल्स। तो आज हमने क्या देखे, नोट इट, 3D प्रिंटेड ब्रिक्स देखे, ट्रांसलूसेंट वुड देखे, लैमिनेटेड टिम्बर देखे और 3D टाइल देखे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रोड मटेरियल कौन से एडवांस यूज़ होते हैं उस पर रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।